डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि ये लेडी ने ऑस्कर लेडी को हमारे देश में लेके आई है. सो जस्ट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. Such a prestigious award, which because of this lady, it's come to our country. Dilip, you're a sought-after Academy Award-winning BAFTA nominated film producer, as well as the founder of Sikhya Entertainment. As a woman, what are the difficulties that you face to come to where you are? Firstly, thank you for having me here. And I have been seeing Smita ji's journey and Mukti Foundation for a while now and following it. So thank you for all the work you do. You're amazing. And I've had the most amazing conversations with both you people independently, cheering other women. And I've seen that consistently. And consistently, you're genuinely happy and pushing other women into more limelight. So thank you for all that you do. I think मैंने ना कभी भी I've never seen a world where men and women are different. I do have to say, what I mean by that is that I've always entered a room thinking that there is no difference. So मेरे नज़र से कोई difference नहीं है. अगर सामने की नज़र से difference है, so I have never even acknowledged it. I have entered the room thinking that this is mine. You know, this is my space and now I need to do this. I have felt age discrimination for sure because I've been very young and generally younger people you say, अच्छा इसको क्या पता होगा या ये मतलब कैसे, you know, 26 साल में गैंग से वासेपुर बना रहे हो या just it is, I have had young issues of not being acknowledged in a room, of not taking my feedback and points. I've noticed that, but not majorly as a woman. And I have also never had that lens. So I've treated everybody as an equal and I have generally expected that. I have to say that after the Me Too movement, I understand and realize that there are so many women who have felt in difficult positions. And I now acknowledge that now this room is full of men and I need to, you know, I have kind of figured this as a, I would say as a, I now understand that, but all these years of making films, traveling the world, I've just been feeling like I've only followed the story. Like मुझे ये करना है, अब ये कैसे करना है? I've been too busy in that. गुनीत जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके फिल्में बनाई हैं और आज तक इन्होंने जो फिल्मों का प्रोडक्शन किया है या जिनसे एसोसिएट हुई है वो बहुत सारे अगर कोई नॉर्मल प्रोड्यूसर वो सब्जेक्ट को हाथ नहीं डालेगा. मेरे ख्याल से डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू हैव ऑलरेडी ऑलवेज चोजन. और इनकी कोलैबोरेशन कंट्री लाइक नेदरलैंड, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, तो एक आप इनको देखते होते ये हर जगह पहुंचती है और अब कोलैबोरेशन करके एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट निर्माण करके हमारे सबके सामने लेके आती है. तो ये आप कैसे अचीव कर पाती है, मुझे बताइए. एक्चुअली कभी बॉलीवुड में एक्सेस ही नहीं था. तो कहानी तो बोलनी थी, तो जहाँ एक्सेस मिला वहाँ से पैसे रेज़ किए, वहाँ फिल्म बनाई जिसको जैसा समझ आया. सो इंडिया ने कुछ 35+ ट्रीटी कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी साइन किए एंड वो ट्रीटीज़ कभी किसी ने यूज़ ही नहीं की. 1985 में फ्रांस के साथ ट्रीटी बनाई थी एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू यूज़ इट इन 2012 फॉर अ मूवी कॉल्ड लंच बॉक्स दैट आई प्रोड्यूस्ड. लंच बॉक्स जैसी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है जिसको भी इंटरनेशनली अक्लेम मिला है. Really, we're so proud of you. Thank you. So I feel like I've crowdfunded, I have raised money internationally, collaborated internationally, understood कि बाकी के देशों में किस तरह से films finance होती हैं and how to adapt that to an Indian model. So I feel I kept learning and kept trying. So somehow it worked.
तो सबसे क्योंकि यहाँ हम यहाँ फिल्में बनाते हैं, ऐसा कौन सा वक्त था कि जहाँ आपको लगा कि नहीं मैं ये कंट्री से बाहर जाके भी लोगों को मिलूं और वहाँ भी हम हमारी फिल्म का उद्योग है उसको मैं उसको टच करके मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूं, ऐसे कुछ क्षण होंगे जो आपको लगा होगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं और भी अपने बाहर जाके I was a part of a film called That Girl in Yellow Boots and वो वेनिस में सेलेक्ट हुई थी 2010 में. वो मेरा पहला फिल्म फेस्टिवल था. उससे पहले मैंने 10 विदानियाँ सलाम इंडिया बनाई थी. जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में आई थॉट कि ये फिल्म अब यहाँ तो आ गया, अब यहाँ से बेचेंगे कैसे. तो वो एक जर्नी, वहाँ से क्यूरोसिटी जागी कि आप पहले तो सिर्फ एक ही सपना होता है कि फिल्म फेस्टिवल में जाओ, उसके बाद वहाँ जाकर फिगर आउट करते हो कि अब यहाँ से और क्या. या तो सिर्फ मतलब एक प्रीमियर कर कर आ जाओ या यू रियली ट्रांसलेट दैट फेस्टिवल इनटू मोर बिजनेस. So from there I started asking a lot of questions with everybody I met and understood the sales company, understood a lot of different models, and then I got a scholarship to study for 1 week in Berlin, 1 week in Halifax, Canada, 1 week in New York, over 1 year. ये तीन हफ्ते का प्लान था जो 3 महीने में एक हफ्ते जाना होता था. It was a scholarship. पूरे देश से 21 प्रोड्यूसर्स सेलेक्ट हुए थे, जहाँ से 6 यूरोप से, 6 कनाडा से और 6 यूएस से. बाकी पूरी दुनिया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से 3 लोग. So I was the only one from India, and there I learned different kinds of financing. So in this program I learned that cinema is treated as art and culture outside India. It's treated as the arts. Here it is, I mean we are still in information and broadcast, मतलब हम लोग अभी भी जैसे war time में. And plus because it's 100% equity, so यहाँ the pressure of returning the money with the interest is very high. So I wanted to reduce that pressure and understand how cinema is structured, how films are structured in rest of the world. So in parts of in the whole of Europe, in the whole of Canada, films are structured as taxpayers' money by government, and that just interested me on how does one even access. तो फिर वहाँ से पता चला कि treaties हैं, through treaties you can access. That does mean co-production. That does mean कि वहाँ के producers चुनने पड़ेंगे, उनके साथ apply करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी applications लिखनी पड़ेंगी, उनमें से कहाँ select होगा, किस प्रकार की कहानी वो लोग पसंद करेंगे. And that's how the scripts that I found, Lunchbox and Masan and Monsoon Shootout, I was able to do international co-productions. And then I also got attached as India producer on some people who were coming to India and shooting. So वो एक, you know, it is more like being a geek. It's more like being a student of. हमें पता है गुनीत, जब सुबह उठती है तो सिनेमा सोचती है, खाते समय सिनेमा सोचती है, तो इनके पूरे शरीर में सिनेमा भरा पड़ा है. तो शायद इसी की वजह से आज आप ऑस्कर को यहाँ तक लेके आई हो. और फिल्म मेकिंग इज सच अ पैशन where one has to have really that passion to reach to that level where you can understand the different level of the cinema or different country where you can reach to where understand that cinema too. So I think ये यहाँ बाकी महिलाओं को आप यही कहना चाहोगे कि एक पैशन, कोई भी एक चीज़ अगर आत्मसात करनी हो तो उसके लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. and there is no turning back. मतलब मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था, यही था, यही करना है और यही आता है करना, और इसी में और सीखती चली गई और आगे बढ़ते चले गए और लोगों से मिलते चले गए. You have to find your tribe, you have to find people who believe in you, and how that becomes a movement. हर एक फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट वो हर एक दिन बहुत डिफ़िकल्ट है. बट आज when I look back 10 years I feel like अच्छा चलो कुछ किया है. तो बाकी औरतों को जो जैसे फिल्म मेकिंग में जाना चाहती है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है? अगर मुझे फिल्म प्रोडक्शन में जाना है या फिल्म का पैशन होना तो एक बात है, पर बाकी भी जो रूट है उसमें वहाँ तक पहुँचने का. मुझे लगता है कि वर्क ऑन मोर एंड मोर फिल्म्स, वर्क विद फिल्म मेकर्स. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. तो मतलब आई स्टार्टेड एज बीइंग अ कॉफ़ी एंड अ फोटोकॉपी गर्ल in film production houses.
So from there you start, then become an intern, I was an intern's intern for a couple of years. फिर वहाँ से फिर मैं ऑफिशियली इंटर्न बनी, जिस पे मुझे बहुत खुशी हुई थी. फिर वहाँ से प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्शन मैनेजर, लोकेशन मैनेजर, लाइन प्रोड्यूसर. फिर मैंने बहुत इंटरनेशनल फिल्म्स लाइन प्रोड्यूस की. फिर मैं बॉम्बे आई. बाय द टाइम आई वाज 21-22 ईयर्स ओल्ड. फिर बॉम्बे में आकर मैंने 2-3 फिल्में प्रोड्यूस की. एंड देन आई set up my company, and then I What a did. great journey, what a great journey. But the thing is, मुझे to ये start. वापस यही पूछना है कि ये सब लोगों तक पहुंचने के लिए आपको वहाँ खुद पहुंचना पड़ता है या आपको उनके उनके बीच में जाके बैठना पड़ता है ताकि आप उनको समझें, उनकी फिल्म मेकिंग को समझें और उनको उनको आप में ताकत होनी चाहिए कि उनको आप कन्विंस कर सके कि ये मेरा सब्जेक्ट है और इसे मैं कोलैबोरेट करना चाहती हूँ. जी बिल्कुल. मैं बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव्स का भी पार्ट थी. मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि जब मैं बॉम्बे नई नई आई थी कि लोगों से कैसे मिलूँगी. नया शहर है, मैं कुछ नहीं जानती थी बॉम्बे के बारे में. मैं दिल्ली से आई हूँ. सो यहाँ पर एक कलेक्टिव था, फिल्म कलेक्टिव. तो मैंने वहाँ जाकर बोला कि आई वांट टू वर्क विद यू गाइज, आई विल वर्क फॉर फ्री. तो मैं वहाँ की सेक्रेटरी बनी. फिर वहाँ से बहुत सारे फिल्म मेकर्स से मिली. सो आई जस्ट फील लाइक यू नो, सीखने की भूख होनी चाहिए. बहुत भूख होनी चाहिए. एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप में वो सच्चाई और वो भूख है तो ये जर्नी इतनी मुश्किल है. बिकॉज कहीं ना कहीं एवरी वन इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस एनर्जी. यू नो, एवरी वन इज़ लुकिंग टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. बिल्कुल. And I think if you have the hunger of taking more responsibility on a project बिल्कुल. and being able to address that, that is, you know, to Very be, important. yeah. Very very important. आपको जिस फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिला है, तो आपको कैसे लगा कि ये फिल्म में इतनी पोटेंशियल है? क्योंकि ऑस्कर तक पहुंचना, हमने जब मैं इम्पा की प्रेसिडेंट थी तभी मुझे पता था कि 10 प्रोड्यूसर्स मेरे पास आते थे क्योंकि हमको अथॉरिटी थी फिल्में चूज़ करने की. और तभी हम भगत सिंह था, फिर अशोका थी, ऐसे बहुत सारी फिल्में थी. तो हमको बहुत दिक्कत हुई कि कौन सी फिल्म हमको ऑस्कर में भेजनी है. अभी वहाँ इतनी लॉबिंग होती है, यहाँ तक तो हम भेज देते हैं पर वहाँ भी लॉबिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ये हमने सुना है. ये कहाँ तक सच है वो आप ही उस पर प्रकाश डाल सकते हैं. पहले तो आई विश कि 2013 लंच बॉक्स के टाइम पर आप प्रेसिडेंट होते, तो हम लोग शायद आज 2 ऑस्कर्स की बात कर रहे होते और हमारे पास फीचर फिल्म का भी आ जाता. बट एनीवेज, आई विश मोर विमेन आर इन चार्ज ऑफ द ऑस्कर कमेटी फ्रॉम इंडिया. बिकॉज सही निर्णय बहुत बार नहीं लिए जाते. बट द की ऑफ एटलीस्ट दैट, firstly we have to realize it is an American award. It's an award show which happens in LA. It's a US award, but it touches the whole world. It is such a big ceremony and it is globally seen and appreciated and has a global footprint. First one in the team that said that this will go very far, you know, because it's a very pure story and it's a and मैंने बहुत सारी और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखी. तो जिस तरह से ये बन रही थी, इट फेल्ट लाइक यू नो दिस विल गो फार इफ़ अगर हम अच्छी बनाएं. तो इतना था कि ये बहुत फेस्टिवल्स में जाएगी. एंड वहाँ ये कल्पना नहीं थी कि वो सारे फेस्टिवल्स जाके जीत जाएगी. फिर जब वो एक एक करके फेस्टिवल्स में सेलेक्ट होनी शुरू हुई, फिर वहाँ पे जीती, तो फिर लगा कि चलो अब शॉर्ट लिस्ट में तो आ जाएंगे. तो ये नहीं सोचा था कि हम जीत जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. ये ज़रूर सोचा था कि शॉर्ट लिस्ट तक, एक लॉन्ग शॉर्ट लिस्ट तक पहुँच जाएंगे. फिर लॉन्ग शॉर्ट लिस्ट के बाद एक 10 शॉर्ट लिस्ट आती है जो अनाउंस होता है. फिर वो 10 के बाद टॉप 5 आते हैं. तो फिर जब टॉप 5 में आए तब लगता है कि अच्छा, मतलब ये तो वो कल्पना के बाहर, वो कल्पना के बाहर थी. और वहाँ पर भी जब अकेडमी अवार्ड्स में भी थी, जब ऑस्कर्स में भी थी, मुझे पक्का पता था कि हम नहीं जीतेंगे. तो मैं बहुत रेस्ट श्योर्ड थी कि बहुत बड़ी बात है यहाँ तक पहुँच गए. ये नहीं पता था कि जीत जाएंगे, लेकिन जब जीते तो मतलब वाह, क्या बात है. सुनना बंद हो गया था. इसकी वजह से आपको इंटरनेशनल स्टूडियो में अभी गुनीत मोंगा जी का नाम लिया जाता है, तो सब पहचानते हैं. तो हम प्राउडली बोलते हैं कि आई नो गुनीत जी वेरी वेल. सो दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच आई थिंक यू हैव गिवन इट टू अस एंड आवर फिल्म इंडस्ट्री. Anything which you would like to know about it? See, making a movie is very exciting.
how did you market it? You've done a lot of effort on, especially the girl in yellow boots. You did so much effort out there that people are talking about it. Tell us about how you actually carved that niche. How you made a mark in an international festival like that? Yeah, thank you. It's a very good question. I feel like, especially yellow boots के लिए हम ना बहुत सारे, I think थोड़ा innocence and naivety भी था है. मैं बहुत सारे posters, कुछ 100 posters, 1000 postcards, 500 visiting cards बना कर ले गई थी. मुझे लगा था कि मतलब फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं मार्केटिंग करेंगे, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कभी फिल्म फेस्टिवल में नहीं गई थी. फिर वहाँ गई तो पता चला कि पोस्टर्स दीवार पर लगाने के लिए वो जगह खरीदनी पड़ती है. And I was like, really? ऐसा भी होता है? So that came to me as a shock, you know, it came. So then हम लोग कुछ 15 लोग गए थे यहाँ से. तो मैंने अपने सारे दोस्तों के बैग्स पे पोस्टर स्टेपल करके अपने भी. फिर हमने बोला हम ह्यूमन पोस्टर्स हैं. तो हम वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ऊपर नीचे चल रहे थे. So you know, just I think things happened out of innocence, out of trying, and of course out of curiosity. फिर वहाँ से one got more savvy when Gangs of Wasseypur went to Cannes, Peddlers went to Cannes, Monsoon Shootout, Yellow Boots, Monsoon Shootout, Lunchbox. You know, तो फिर सीखना शुरू हो गए. फिर सेल्स एजेंट्स के साथ कोलैबोरेट किया. जैसे मैं ऑस्कर्स के लिए भी कह रही थी कि फर्स्टली टू रियलाइज दैट यू नो व्हेन यू हैव टू टेक अ फिल्म टू यूएस यू हैव टू हैव अ यूएस डिस्ट्रीब्यूटर. तो वो यूएस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कैंपेन करते हो और उनके लिए ये डे टू डे का वर्क है. तो ऑस्कर्स भी अगर एज ए कंट्री हमें अगर क्रैक करने हैं और अगर हमें वहाँ पर जाना है अपने देश को लेकर, अपने देश को रिप्रेजेंट करके इन द फीचर फिल्म कैटेगरी, वन हैज़ टू पार्टनर विद अ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर, जो लंच बॉक्स में था, जो सोनी पिक्चर क्लासिक था, जिनके लिए ये डे टू डे एक्टिविटी है. और हमारे लिए इतना डॉन्टिंग है क्योंकि हमारे लिए वो नया देश है, नया शहर है. वहाँ पे कौन पब्लिसिटी करता है, वहाँ पर किस तरह से पब्लिसिटी होती है, टीवी, रेडियो, प्रिंट, विच इज़ द बेस्ट एवेन्यू. So similarly, once I figured in Venice, in Yellow Boots, when we went to Cannes, we had our French partners in place. We had our global PR in place based out of London. We had our French PR in place. We had our Indian PR in place. And everybody worked together. So that's what led to the footprint of the work, that films that we were able to put out. So, but that is, you know, you have to work with sales agents and you have to work the way the rest of the world works. So yeah. You as a woman, what message you would like to give if anyone wants to enter into this industry? Just keep creating. You know, it all adds up. मतलब ऐसे No, but रुकना नहीं is there चाहिए. any discrimination like, okay, as a woman, what one has to pursue? Because on Women's Day, we would like to encourage more women to enter into this industry. So सबसे पहले तो we are not competition. We are all each other's companion. Each for equal. Yes. So we have to fix each other's crown, join hands and travel together. So हमें ना बहुत पेट्रियार्की ऐसे कूट कूट कर भरी हुई है सिस्टम में, और इतने सालों से पेट्रियार्की है दैट ऐसे हम वी हैव ऑलवेज बीन पुश टू अ पॉइंट दैट वी आर कॉम्पिटिशन, कि अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो ये किसी और को मिल जाएगा. एक्चुअली वो पूरी चादर ही बहुत बड़ी है. नहीं, पर मैं अभी भी मानती हूँ क्योंकि अगर कोई औरत को कोई एक ओहदा मिला है तो उसको शायद डबल अपने एफर्ट्स जी. दिखाने पड़ते हैं. क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है जब मैं इम्पा की प्रेसिडेंट थी. जी. तो मैं अकेली औरत थी जैसे, और करीब 15 ऑल सीनियर पीपल वर देयर इन दैट. तो मुझे बहुत वक्त लगा, कुछ 2-3 मीटिंग्स लगी जो कंडक्ट हमने की. उसमें फिर उनको पता चला कि नहीं, इस औरत को थोड़ा बहुत ज्ञान भी है. तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमको इट्स अ बट नेचुरल दैट वी हैव टू पुट डबल एफर्ट्स टू प्रूव योरसेल्फ. Yeah, in that journey, if you find more women who are supportive, it gets much more Exactly, easier. It yeah. gets easier But as a once you collective. know, yes. It gets easier when, and I feel when one woman shines, 10 more shine with it. When one rise, and we should double down on celebrating rising women. So as a team, because we are all team, we are not competition. We are Correct. companions, and we are walking this journey और together. हर औरत को दूसरी औरत को हौसला देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए. जो यूजुअली यही बोला Absolutely. जाता है कि नहीं, women are more jealous, which I don't agree with, because nowadays women are changing. They are not interested in gossip. They are not interested in what other women. In fact,
बाकी दूसरी औरत कुछ अच्छा काम करी है तो उसको सराहा जाता है और यही काम यही आज की पीढ़ी भी करती है, आज के युवा को भी समझ में आता है और मैं हर उस औरत को बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहती हूँ जो अचीव करती है. And I also feel that, you know, I feel like the society or whoever these people are, your peer group, your family, extended family, society, general, they like putting women in a box. कि ये ऐसी है. But ज़रूरत नहीं हमें define करने की. हाँ बिल्कुल. You know, तो हम हर shape, size, color और हमारी जितने भी रंग हैं हम उन सब रंगों में बहुत खूबसूरत हैं. So there is no need of putting anybody in a box or presuming कि अच्छा हमें ये पता ही कैसे. You know, because हमें नहीं पता. Everybody is fighting their own battles, showing up at work every day and making it work, pushing it further. So I feel like show up every day, make the mark, there is no stopping you. Don't give more energy to anybody stopping. Give energy to your work and celebrate another woman. And the more you give, the more abundance, state of abundance we live in. And that has been my philosophy in life. Thank you. So quickly, rapid fire for you. What is your favorite film? Life is beautiful. Who's your favorite filmmaker? Zoya Akhtar. Uh-huh. Who's your favorite comfort food? What is your favorite comfort food? Khichdi. Who's your favorite female activist? Female activist. I think I don't know if Faye D'Souza. I don't know if Faye D'Souza is an activist, but currently, so Faye D'Souza. Okay. So, one word for what you think of women's portrayal in Indian films. Out there, we are out there. It's changed. It's changed, and now we are out there, and we are in your face. Unavoidable. We are here to stay. अगर 2 विशेष मांगनी है तो क्या मांगोगे? Wishes मांगनी है. For each one of us to comfortably feel safe, for a safe world and for an equal world. No difference in caste and gender. हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग सब एक हैं. And the planet to be a safer place for women. जहाँ हम freely Lovely. कुछ भी करना चाहें, सोच सकें. Yeah. Thank you. Thank you so much for having me here. Thank you so much. Smita ji, thank Can I you. have